اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، یہ بات ہے اسلامی کیلنڈر کے 10ویں سال کی۔ مدینہ کی فضائیں پوری طرح سکون سے بھری تھیں۔ در و دیوار خاموشی سے کسی آنے والے پل کی گواہی دے رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، ایسا اعلان جس نے مدینہ کی فضاؤں میں روحانیت کی لہر دوڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، اور یہ وہی حج تھا جو تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا۔ 24 ذوالقعدہ دن جمعرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بڑے اہتمام سے بالوں میں کنگھی کی، سر میں تیل لگایا اور جوہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی۔ پھر آپ نے اپنی محبوب اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر سفر کا آغاز فرمایا۔ قصواء پر ایک سادہ سا قزاوہ تھا جس کی قیمت صرف 4 درہم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک عام سی چادر تھی۔ کیا شان سادگی تھی؟ کیا عکس تھا آپ کی عاجزی کا؟ جب آپ نے احرام باندھا تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک ایسی دعا فرمائی جو دل کے تاروں کو چھو جاتی ہے، اے اللہ، اس حج کو میرے لیے مقبول بنا دے۔ ایسا حج جس میں نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری اور نہ ہی کوئی فریب۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں وہ عظیم خاتونیں جو امہات المومنین کہلاتی ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں۔ وہ 9 بیبیاں اونٹوں پر حوضوں میں سوار تھیں۔ قافلہ روانہ ہوا، ایمان سے لبریز دل، آنکھوں میں اللہ کے گھر کا تصور اور زبانوں پر لبیک اللہم لبیک کی گونج۔ راستے میں مقام ذوالحلیفہ پر عصر کی نماز ادا کی گئی۔ یہیں سے احرام کی نیت کی گئی اور لبیک کی صدائیں فضا میں بلند ہوئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے صحابہ کو تلبیہ بلند آواز میں پڑھنے کا حکم دیں، کیونکہ یہی حج کا نعرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا، اور پھر ایک ایسا روحانی منظر سامنے آیا، ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اٹھنے لگیں، گویا زمین اور آسمان اس نعرے حق سے گونج اٹھے۔ قافلہ مقام جی اریس پہنچا، رات وہیں گزاری گئی، صبح کی نماز ادا کی گئی، اور پھر قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو ایک لمحے کو ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں بےتاب تھا۔ آخرکار جب سورج کی کرنیں چمکنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب سلام سے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا مانگی جو ہر حاجی کا سرمایہ بن گئی، اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ اے رب، ہمیں بھی سلامتی عطا فرما اور اس گھر کی عزت اور عظمت میں اضافہ فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کا آغاز فرمایا، 7 چکر لگائے، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پہلے 3 چکر آپ نے تیز قدموں کے ساتھ لگائے، سینہ تان کر اللہ کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے۔ باقی 4 چکر دھیمے دھیمے ادب اور خشوع کے ساتھ مکمل کیے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر جمجم کا پانی پیا، وہ پانی جس کی ہر بوند رحمت ہے۔ اب باری آئی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف بڑھے تو آپ کی زبان پر یہ قرآنی آیت تھی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چکر لگائے۔ جب صفا یا مروہ پر چڑھتے تو قبلہ رخ ہو کر بلند آواز میں تکبیر فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کی فوج کو اکیلے شکست دی۔ یہ تمام منازل صرف عبادت نہیں تھیں بلکہ ایک سبق تھیں، عاجزی کا، خلوص کا
अल्लाह से तल्लुक का और उम्मत को राह दिखाने का एक अमली नमूना थीं। नबी आखिरुज्जमां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ हक सफ़ा और मरवा के दरमियान सही मुकम्मल होने के बाद नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना की और फिर अपने सहाबा को एक अहम हुक्म दिया। फरमाया, जिनके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है वो अपना एहराम खोल दें, और जो कुर्बानी के जानवर लाए हैं वो एहराम में ही रहें। वक़्त गुजरता रहा, दिलों की धड़कनें तेज होती गईं और 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन आ पहुंचा। इस्लामी तारीख का वो दिन जब ईमान का काफिला मदीना से निकलकर मक्का की मुक़द्दस वादी में मिना की सरजमीन पर खैमा जन हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र के बाद मिना के लिए रवाना होने का हुक्म दिया। जो लोग पहले उम्रा करके एहराम खोल चुके थे वो दोबारा एहराम बांध चुके थे। मिना में दिन भर नमाजें अदा की गईं, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और फिर फज्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मिना ही में क़याम करते गुजारी। क्या खूबसूरत मंजर होगा जब आसमानों के नीचे लाखों परवाने अपने शम्अ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द जमा थे। लब्बैक की गूंज में, खैमों में, रात के सन्नाटे में। अगली सुबह सूरज तलुआ हुआ और दिल थाम लेने वाला लम्हा आ पहुंचा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, मेरे लिए एक तंबू ऊंट के बालों से तैयार किया जाए। ये तंबू मैदान अरफात में लगाया गया। दिन चढ़ते चढ़ते जब सूरज आधे आसमान पर आ चुका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी कस्वा को बुलाया। ऊंटनी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वसीया व अरीज मैदान में दाखिल हुए जहां सहाबा की निगाहें शौक से आपकी तरफ थीं। फिर वो लम्हा आया, तारीख का सबसे असरदार, सबसे सच्चा और सबसे जामिया खुतबा जो एक नबी ने इंसानियत को दिया। लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, शायद आज के बाद मैं इस मकाम पर तुमसे न मिल सकूं। ये जुमला सहाबा के दिल चीर गया, निगाहें नम हो गईं, दिल लरज उठे। तुम्हारा खून, तुम्हारा माल एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे आज का दिन, यह महीना और यह मुकाम हरमत वाला है। याद रखो, तुम सबको एक दिन अपने रब के सामने पेश होना है और वो तुम्हारे हर अमल का हिसाब लेगा। क्या अजीम पैगाम इंसाफ था ये, क्या मोहब्बत और भाईचारे का ऐलान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास किसी की अमानत हो वो उसे लौटा दे। हर किस्म का सूद आज से खत्म किया जा रहा है और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ करता हूं। फिर जुल्म के खिलाफ ऐलान करते हुए फरमाया, जाहिलियत के जमाने के तमाम इंतकामी कत्ल खत्म कर दिए गए। सबसे पहले मैं रबिया बिन हारिस के बेटे के कत्ल को माफ करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शैतान से होशियार रहने का हुक्म दिया। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि अब कभी इस सरजमीन में उसकी पूजा की जाएगी, लेकिन अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो वो उन छोटे गुनाहों पर भी राजी हो जाएगा जिन्हें तुम मामूली समझते हो। इसलिए दीन के मामले में उससे हमेशा होशियार रहो। फिर औरतों के हकूक पर बात की, वो बात जो उस दौर में एक बेमिसाल इनकलाब थी। तुम्हारा अपनी बीवियों पर हक है और उनका भी तुम पर हक है। उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। उन्हें अल्लाह के नाम पर अपने निकाह में लिया है। उनके साथ नरमी से पेश आओ, वो तुम्हारे पास कैदियों की मानिंद हैं। फिर वो जुमले जो आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए मशले राह हैं। मैं तुम्हारे दरमियान एक चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर उसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह न होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। और आखिर में वो ऐलान जो हर कलमा गो के दिल को उसके भाई से जोड़ता है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब बराबर हो। किसी अरबी को अज़मी पर और किसी अज़मी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? हर तरफ से आवाज आई, जी हां या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू गवाह रह
मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। जब अराफात के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जोश से भरपूर, हिकमत से लबरेज और दिलों को झकझोर देने वाला खुतबा मुकम्मल किया तो आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया, अपनी उंगली को बुलंद किया और बड़ी आजमौदगी और सच्चाई के साथ 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रह, ऐ अल्लाह तू गवाह रह। क्या ही रूह परवर मंजर रहा होगा। लाखों लोगों की भीड़, लेकिन मुकम्मल खामोशी, सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज जो फिजाओं को चीरती हुई अर्श तक पहुंच रही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया। अजान की सदाएं अराफात की वादी में गूंज उठीं, जैसे फरिश्ते भी उस लहजे से हम आवाज हो गए हों। इसके बाद जोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की गईं। 2 अजानें नहीं दी गईं, बल्कि एक अजान के बाद 2 अलग अलग तकबीरें हुईं। इस अमल में भी उम्मत के लिए एक सबक था, इत्तेहाद, एकता, सहूलत, आसान तरीका और यकजहती, यूनिटी। फिर एक काफिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, चेहरे परेशान, दिल सवालों से भरे हुए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हज कैसे किया जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया, अल हज्जु अराफा, हज का असल मकसद अराफात में ठहरना है। जो यहाँ ठहर गया उसका हज मुकम्मल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा मैदान अराफात वकूफ की जगह है। फिर जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशअरुल हराम यानी मुज़दलिफा की तरफ सफर शुरू किया। आपके साथ इस सफर में हजरत उसामा बिन जैद रजियल्लाहु अन्हु थे, जिन्हें आपने अपनी ऊंटनी के पीछे सवार किया। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लोगों को नरमी और एहतियात से चलने की तालीम देते, जैसे एक रहमदिल बाप अपने बच्चों को तरबियत दे रहा हो। नरमी इख्तियार करो, कोई जख्मी ना हो, कोई तकलीफ में ना पड़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफा पहुंचे तो वहां मगरिब और ईशा की नमाजें ईशा के वक़्त में अदा की गईं। फिर आपने वहां रात बिताई, जमीन पर सादगी से, आजमौदगी और इबादत के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों, बच्चों और कमजोरों को इजाजत दी कि आधी रात के बाद मिना की तरफ रवाना हो जाएं, ताकि रमी यानी शैतान को कंकरियां मारते वक़्त के भीड़-भाड़ से बच सके। फज्र के वक़्त रोशनी से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा में नमाज अदा की। फिर सूरज निकलने से पहले मिना की तरफ रवाना हो गए। मिना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा यानी बड़े शैतान के पास गए और वहां 7 कंकरियां मारी। हर कंकरी के साथ आपने बुलंद आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर। आप ऊंटनी पर सवार थे, हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु लगाम थामे हुए थे और हजरत उसामा रजियल्लाहु अन्हु कपड़े से आपको साया किए हुए थे। ये मंजर किसी शाही जुलूस का नहीं था, बल्कि इबादत, आजमौदगी और बंदगी का सबसे आला नमूना था। फिर मिना की मुकद्दस फिजाओं में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुतबा अता फरमाया। आवाज में दर्द था, लहजे में रहमत थी और जुमलों में उम्मत के लिए आखिरी वसीयत छुपी हुई थी। ऐ लोगो, सुनो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे आज का दिन, ये महीना और ये शहर मुकद्दस है। आपने ये अल्फाज कई बार दोहराए ताकि ये बात लोगों के दिलों में उतर जाए। फिर फरमाया, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? लोगों ने एक आवाज में कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, आपने हक अदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो यहाँ मौजूद है वो उन तक ये बात पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं। फिर आपने एक दर्दनाक जुमला फरमाया, मेरे बाद कुफ्र के अंधेरों में वापस न लौट जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। और आखिर में फरमाया, लोगो, मुझसे हज के अरकान सीख लो, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। दिल की धड़कनें थम गईं, वक्त ठहर सा गया। सहाबा के दिल रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे, क्योंकि वो समझ चुके थे अब जुदाई का वक्त करीब है।
और वाकई ऐसा ही हुआ। हज के सिर्फ 3 महीने बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये हज सिर्फ एक हज नहीं था, ये अलविदा था, एक आखिरी सलाम था, रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम था। ये एक उम्मत के लिए वसीयत थी, रहनुमाई थी और एक ऐसी रोशनी थी जो क़यामत तक चमकती रहेगी। प्यारे दोस्तों, अराफात और मुजदलिफा के रूहानी लम्हों के बाद मिना के मैदान में एक और मंजर था, कुर्बानी का, मोहब्बत का, शुक्रगुजारी का और अल्लाह के हुजूर इताअत का। नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में कुर्बानी की जगह तशरीफ लाए। वहां आपने 63 ऊंट अपने मुबारक हाथों से ज़बह फरमाए। क्या मंजर रहा होगा। हर ऊंट गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक साल की याद बनकर अल्लाह के हुजूर कुर्बान हो रहा था। ये जानवर मदीना से खास तौर पर लाए गए थे और आपने उनमें से कुछ का गोश्त पकवा कर खुद भी तनावुल फरमाया, शुक्र अदा किया और उम्मत के लिए एक सुन्नत कायम की। बाकी 37 ऊंट हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुर्बान किए। यूं कुल 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त और बाकी चीजों को लोगों में तकसीम करने का हुक्म फरमाया। कोई महरूम न रहे, सबको हिस्सा मिले, सब खुश हों। याद रखो, मिना का पूरा इलाका कुर्बानी के लिए मुकर्रर है। जहां भी कुर्बानी की जाए वो मकबूल है। कुर्बानी के बाद वो लम्हात आए जो तारीख में सुनहरे अल्फाज में महफूज हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक मुनवाया। बाल जमीन पर गिरते तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम झुक झुक कर उन्हें जमा करते। कोई आंखों से लगाता, कोई दिल से और कोई अपने कफन में रखने के लिए महफूज करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर दुआ की, ए अल्लाह, सर मुनवाने वालों की मगफिरत फरमा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई, गोया आखिरी हज का हर लम्हा खुशबू में बस गया हो। फिर नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर सबसे पहला काम जो किया वो था तवाफ़े इफ़ाज़ा। ये हज का फर्ज तवाफ है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ मुकम्मल किया, जमजम से पानी पिया और कुछ पानी अपने सर पर भी छिड़का, गोया जिस्म को भी पाक किया और रूह को भी। फिर दोबारा मिना वापस तशरीफ ले गए और वहां जौहर की नमाज अदा फरमाई। मिना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन कदियाम फरमाया। इन तीनों दिनों में आपने जमरात यानी तीनों शैतानों को 7 कंकड़ियां मारी। ये रमी, ये कंकड़ियां महज पत्थर नहीं थीं, ये इताअत की निशानी थीं, ये ऐलान था, हम शैतान को ठुकरा चुके हैं। फिर मिना का कयाम मुकम्मल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का वापस तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को एक और हुक्म दिया, ऐसा हुक्म जो हर हाजी के लिए एक आखिरी सबक है। लोगों, अपने वतन लौटने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। ये तवाफ तवाफ़े विदा कहलाता है। अलविदाई तवाफ, वो लम्हा जब दिल बैतुल्लाह से जुदा होने को तैयार नहीं होता, आंखें बार बार मुड़कर देखती हैं और लब्बों पर सिर्फ एक ही दुआ होती है, ए अल्लाह, हमें फिर बुलाना। प्यारे दोस्तों, ये था नबी ए आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज, हज्जतुल विदा। एक ऐसा हज जिसमें हर कदम सुन्नत बन गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे, आपको और हमारे तमाम व्यूअर्स को बार बार हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ई अमानिल्लाह।